Firstly, ladies and gentlemen, let's give a very warm round of applause to the Lieutenant Governor of Delhi, Mr. Vinay Kumar Saxena. He actually has I was looking at he has had such a varied career. He was a jet-set corporate executive, then built, in fact, the Dholera port as CEO of Gujarat. While he was doing that, he was also a passionate activist. I think you set up the National Council for Civil Liberties way back in 1991. And that has been an organization that has championed many causes. Then for 7 years, he was Khadi and Village Industries Commission, chairman of that. And in that, he not only popularized honey, sir, I come from Kodagu, which honey is our major product on this one. Yes, you've done. I visited Kodagu. Oh, also. Lovely. It's best part of the country, sir, apart from Delhi. Beautiful place, beautiful. And of course, also helped the empowerment of leather artisans in a big way. And then was given the major responsibility of being the Honorable Lieutenant Governor of Delhi. As you know, Delhi is not only the capital of India and capital of for almost 500 years, if you look at the history of Delhi. And from the medieval periods, it has dominated. Every street you walk in Delhi is steeped in history, monuments, beautiful parks, major events that happened during independence. Our parliament is here, head of government, as well as many of the other beauties that Delhi offers. So Mr. Saxena has kindly agreed to speak for about 10-15 a fireside chat with me. He has to rush off to another place. So let's begin, Saxena Saab. Some water for you. Let's begin, Saxena Saab, with, Delhi is really the hub, if you look at it, in terms of tourists coming in. In terms of the airport, the maximum number of both foreign tourists as well as domestic passengers land up in Delhi. Yeah. What can be done to make Delhi truly the hub of tourism? What is being done now, and what do you think could be the areas you could push for? First of all, thank you very much for inviting me for this important event. और आपने जो पूछा है उसको मैं कहना चाहूँगा, Delhi is a very, very important city for the country. It's a national capital, no doubt in it. It can be converted into a heritage city. हाँ. यहाँ पर इतने monuments हैं, मैं समझता हूँ कि देश के किसी भी city या किसी भी state में इतने monuments नहीं हैं. But unfortunately, जो attention देना चाहिए था, वो नहीं मिला. Night life जो यहाँ होनी चाहिए थी, वो मिसिंग है. उसके साथ साथ जो एक कैपिटल सिटी की क्लीननेस होनी चाहिए थी, वो भी मिसिंग थी. पोल्यूशन इज अ मेजर चैलेंज इन द सिटी. यस. देन गार्बेज डंप्स, राइट, वो हमारे सिटी के लिए एक कलंक जैसे हैं. यमुना जो क्लीन होनी चाहिए थी, विच कैन बी ब्यूटिफाइड, राइट, और जहाँ पर वाटर फ्रंट बन सकता है, कभी उस पर टेंशन नहीं हुआ. बहुत सारे चैलेंजेस हैं दिल्ली के अंदर. फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर मेरी कोशिश है कि हम दिल्ली को ट्रैक पे लाएं. उसी सिलसिले में मैं आपको थोड़ा सा शेयर भी करना चाहूँगा कि अभी क्या हुआ है. जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो ASI के मॉन्यूमेंट्स थे, उसको DDA ने अब लेना शुरू कर दिया है. अभी रिसेंटली हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल पार्क जो महरौली में है, उसको डेवलप किया है. विदिन 7 months इट वॉज डेवलप्ड. और आज लगभग 1500+ पीपल विजिट करते हैं डेली. वहाँ एक कैफेटेरिया है, वेरी हाई एंड कैफेटेरिया. प्लस उसके साथ साथ और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. यमुना क्लीनिंग के लिए वी वर्क वेरी वेरी हार्ड. यमुना जो है वो एक तरीके से नाले में कन्वर्टेड है. 6-8 months वी वर्कड. जो BOD और COD उसका कम भी किया. बहुत सारी एजेंसीज़ को साथ में लिया, बिकॉज यमुना की जो प्रॉब्लम है वो इंटरस्टेट भी है. बहुत सारा एफ्लुएंट जो है हरियाणा से भी आता है इसमें.
उसके साथ साथ जो दिल्ली में भी जनरेट हो रहा है उसको भी कम करने की कोशिश की, बट समहाउ एक सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने पिटीशन फाइल किया और उसके बाद वो एक्टिविटीज़ जो मेरी थी वो स्टे हो गई हैं, तो उसकी वजह से हम नहीं काम कर पा रहे हैं उसमें। दिल्ली में स्कोप बहुत है फॉर टूरिज्म, ये मैं कहना चाहूँगा। नाइट लाइफ को बढ़ाने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2016 से जो प्रपोजल थे 24/7 काम करने के लिए इंडस्ट्री के, वो पेंडिंग पड़े हुए थे स्टेट गवर्नमेंट के पास। उनको हम लोगों ने हमारी स्पेशल पावर यूज़ करके निकाला और अभी तक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा 700+ इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को हमने 24/7 वर्क करने की परमिशन दे दी है। वाह। इसी से जो है नाइट लाइफ में चेंजेस आएंगे। सेकंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ जो 5 स्टार 4 स्टार होटल्स थे, मुझे बताया जब होटल एसोसिएशन के लोग मिले आकर कि अगर कोई कस्टमर उनका या कोई पैसेंजर या कोई टूरिस्ट रात में फॉर एग्ज़ाम्पल 12 बजे चेक इन करता है और वो कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर ज़रा बार में बैठूंगा, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट में जाऊंगा, डिनर लूँगा, तो उसको जो रिप्लाई मिलता था वो ये था कि सर सॉरी 11 बजे हमारे यहाँ बार बंद हो जाता है, 11 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, रूम सर्विस द ओनली ऑप्शन। यू आर इन नेशनल कैपिटल, करेक्ट, राइट। 11 बजे कैसे बंद हो सकता है? बिल्कुल। तो इमेज का भी सवाल था। वो रूल सारे बदल दिए गए हैं। नाउ 5 स्टार 4 स्टार होटल में 24/7 सर्विसेज अलाउड हैं। पहले रिस्ट्रिक्शंस था कि आप एक से ज़्यादा बार का लाइसेंस नहीं मिलता था 5 स्टार और 4 स्टार होटल में। नाउ दे कैन टेक एज मैनी एज दे वांट, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 स्टार होटल्स को हम लोगों ने 2 बजे तक अलाउ कर दिया है, वहाँ आप बिजनेस कर सकते हैं। एयरपोर्ट या और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ 24/7 की रिक्वायरमेंट है उसको 24/7 कर दिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन विच आई हैव टेकन, जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है दैट हैज़ बीन मेड ऑनलाइन एंड 49 डेज के अंदर यू विल गेट द लाइसेंस। वंडरफुल। 49 days. Earlier it was taking 3 years. Right. 3 years. Various agencies. Deemed approval है, 49th डे में अगर आपको लाइसेंस किसी एजेंसी ने नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट। तो किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ जो है फेसलेस कर दी गई है। उसका इम्पैक्ट बहुत हुआ है। अभी जो मेरे पास डेटाज आते रहते हैं उसके मुताबिक करीब 50 to 55 लाइसेंसेस एवरी मंथ हम दे रहे हैं, जो स्टक थे फ्रॉम ईयर्स टुगेदर। तो इस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं। कुछ नए स्पेसेस को डेवलप किया गया है। यमुना फ्लड प्लेन्स में आपने देखा होगा कि इट वाज फुल ऑफ इंक्रोचमेंट, हज़ारों झुग्गियाँ, वहाँ पर एनिमल्स, उनको क्लीन करके एक प्लेस सराय काले खां के पास डेवलप की गई, दैट इज़ कॉल्ड पांसेरा, जहाँ हम लोगों ने करीब 25,000 बैम्बू का प्लांटेशन किया है। और अर्लियर इट वाज ए CND वेस्ट साइट, जहाँ करीब 2 लाख टन CND वेस्ट था। आज मैं समझता हूँ कि दिल्ली या आसपास के किसी भी स्टेट में इतनी खूबसूरत जगह नहीं होगी जिसको डेवलप किया गया है। करीब वहाँ पर भी 500-700 लोग पर डे विज़िट करते हैं और 50 रुपये का टिकट है, उसको लेकर आते हैं। वाटर बॉडीज़ बनाई गई हैं, म्यूज़िकल फाउंटेन्स लगाया गया है वहाँ पर। एक बहुत हाई एंड कैफेटेरिया बन के तैयार हो गया है, उसका ऑक्शन अभी हो रहा है, शायद 4 मार्च को वो भी शुरू ऑपरेशन में आ जाएगा। इसी तरीके से एक और प्लेस है कॉल्ड असीता, वो भी यमुना फ्लड प्लेन्स में है, उसको भी मैंने लास्ट ईयर डेवलप किया था। और आज उसके अंदर जो वाटर बॉडी है उसमें करीब 182 स्पीशीज़ जो हैं बर्ड्स की वहाँ पर विज़िट कर रही हैं। उसको भी मैं चाहूँगा आप आकर देखें। तो बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं दिल्ली को बेहतर करने की। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस वक्त मैंने ओथ ली थी उस वक्त मैंने कहा था कि मैं दिल्ली को सिटी ऑफ फ्लावर्स बनाऊँगा, सिटी ऑफ सॉरी फ्लावर्स, सिटी ऑफ जॉय बनाने की कोशिश करूँगा।
और उसी तर्ज पे मैं काम भी कर रहा हूँ। इस साल आपने ट्यूलिप्स को देखा होगा, पूरे सिटी के अंदर ट्यूलिप्स हैं। अर्लियर एक ट्यूलिप का जो एक एरिया था वो एनडीएमसी का एरिया हुआ करता था। नाउ दिस टाइम द एंटायर सिटी इज फुल ऑफ ट्यूलिप्स। You are correct. My wife just took a photo and showed me and I didn't realize. full of दिल्ली में है। पहले 40,000 ट्यूलिप्स आया करते थे, आज इस बार हम लोगों ने करीब 5 लाख ट्यूलिप्स को लगाया है। अरे तो कोशिश ये है कि जो नेशनल कैपिटल का जो स्टेटस होना चाहिए उसे हम किसी तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं। Wonderful, wonderful to hear that, because I've always thought we go to London and we spend 4 days, go to Berlin another 4 days, Paris. We don't think of going to rural France, or even London. You might stay most of the time and then go one day trip and come back. What needs to be done for Delhi? Because Delhi is used most like a transit. We'll go to Agra, we'll go to Jaipur, that part of it, and then fly off to other places. How can we keep, Delhi can keep the tourists at least for 3 to 4 days, keep them engaged with food, what you mentioned, monuments. What is the plan for that? Can we get people to spend more in Delhi apart from other parts of the country? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। ये आपने जो कहा है वही हमारी कोशिश है। आपने देखा होगा कि इस वक्त 150 प्लस फाउंटेन्स पूरे सिटी के अंदर लगाए गए हैं एंड करीब 500 प्लस हमारी प्लानिंग है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी लगाने की, जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल। जिस वक्त G20 चल रहा था उस वक्त जो हम लोगों ने करीब 7,50,000 पॉटेड फ्लावर्स पूरे सिटी के अंदर लगाए थे, जिसकी वजह से यूपी, राजस्थान, हरियाणा वगैरह से लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे। तो उसी तर्ज के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो उड़ीसा और राजस्थान से हम लोगों ने परचेज़ किए हैं उनको भी सिटी पे लगाने की कोशिश की जा रही है। द आइडिया इज़ कि सिटी को एक टूरिस्ट हब में कैसे कन्वर्ट किया जाए। लोग जब सिटी के अंदर आएँ तो उनको ये लगना चाहिए कि हम एक इस सिटी के अंदर हैं जहाँ चलो 1-2-4 दिन गुजार के जाते हैं, यहाँ खाएंगे, गलियों में सड़कों को घूमेंगे, देखेंगे, फाउंटेन्स को देखेंगे तो मज़ा आएगा, अपनी फैमिली के साथ आएंगे। तो आइडिया तो वही है कि किसी तरीके से सिटी को उसी रूप में कन्वर्ट करना। One final question. I know you're in a bit of a hurry to go, but G20, you had mentioned the facilities and everything else would come. Now, Bharat Mandapam is there, you have the trade fair. But for a long time, it had been neglected. We never got the big fairs. Can Delhi become the true MICE city, as they call it, meetings, incentives, exhibitions, and this thing, what they use that acronym for in tourism parlance. Can it become the hub of fairs and exhibitions? Definitely. मैं आपको यहाँ से शेयर करना चाहूँगा भारत मंडपम was constructed at a cost of 2,700 crores. दूसरा एक और जो बनाया हुआ क्या है वो यशोभूमि at a cost of around 5,000 crores. Can you believe कि यशोभूमि and भारत मंडपम are booked for 1 year? Wow. It means कि यहाँ पर बड़ी-बड़ी जो है एग्जीबिशंस होंगी, यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंसेस होंगे। जब कॉन्फ्रेंसेस होंगे, एग्जीबिशंस होंगी, तो जो टूरिस्ट यहाँ आएगा या जो उससे कनेक्टेड लोग आएंगे, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के होटल्स को बिजनेस मिलेगा। तो आइडिया बिल्कुल क्लियर है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है वो बहुत सिंपल है कि हम अपने सिटी को किस तरीके से एक टूरिस्ट फ्रेंडली बनाएं। देखो इंडिया प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत ही पेट प्रोग्राम है। इसकी वजह से आज लोग बहुत सारे सिटीज़ में, अपनी ही सिटीज़ में विज़िट करने लगे हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं। प्रॉब्ली आपने शायद दिल्ली को पूरा नहीं देखा होगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए दिल्ली में क्या क्या हो गया है और क्या क्या होने वाला है। तो ये ज़रूरी है कि हम पहले अपने सिटी को देखें, अपने सिटी को एग्जामिन करें, उसके बाद हम अपने कंट्री को एग्जामिन करें। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, मैं समझता हूँ कि ये भी टूरिज़्म को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देने वाला है। और ये दो जो यहाँ कन्वेंशन सेंटर्स बने, जो वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर्स हैं, उसमें जो एग्जीबिशन या कन्वेंशन सेंटर्स में जो कैपेसिटी है वो 5,000 to 10,000 पर्सनस की कैपेसिटी है। 500 to 700 कार्स की पार्किंग एट ए टाइम हो सकती है एंड फ्लॉलेस प्रोग्राम्स वहाँ होते हैं। G20 का प्रोग्राम भी वहीं पर हुआ था और आपने शायद देखा भी होगा कि जितने भी लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, दे वर ऑल वेरी हैप्पी टू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं और कोशिश भी मेरी भी यही है कि हम दिल्ली को कितना खूबसूरत ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। Wonderful. One last point, you had mentioned Yamuna cleanup.
I won't ask you about air pollution. वो तो बहुत बड़ा subject. We'll take a full hour to discuss it. When can we expect Yamuna, the work that you're doing, कब तक वो थोड़ा साफ हो जाएंगे? You will not see all those industrial chemicals coming in. When can we see that, and when can the waterfront be developed? देखिए, यमुना क्लीनिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैंने उसमें दिन रात वर्क किया है. अराउंड 6 to 7 months आई वॉज विजिटिंग ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे. मैंने वहाँ करीब 40 से ज़्यादा मोटर राइड्स किए हैं, जो इम्पॉसिबल था वहाँ पर खड़ा भी होना. एनजीटी चेयरमैन वाज विद मी. केमिकल्स की एक वहाँ पोजीशन थी कि 5 मिनट्स अगर आप वहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो आप योर आइज विल स्टार्ट बर्निंग. दैट वाज द कंडीशन. लेकिन हम लोगों ने इसको 7 months के अंदर 11 किलोमीटर का स्ट्रेच एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन कर दिया था. देयर वाज नो गार्बेज. वाह. लेकिन हमारा दिल्ली में जो चैलेंज है इज़ वेरी डिफरेंट. जो पॉलिटिकल चैलेंज है इज़ बिकॉज ऑफ दैट दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट कि सब दिस वर्क इज़ माइन, LG should not do this, or because of that the Honorable Supreme Court has stayed my role in that. From that very day I am not working on this. I don't know जब कभी भी वो stay जो है vacate होगा उसके बाद again I will start working on it. लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है जिस दिन वो stay vacate होगा 2 years will be the upper limit. 2 साल के अंदर यमुना उसी तरीके से क्लीन होगी जैसा कि जब यहाँ दिल्ली में एंटर करती है पल्ला के अंदर, जहाँ उसका BOD और COD 5 हुआ करता है. दिस मच आई कैन प्रॉमिस. लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में. Well, we hope that all this happens because we have loved Delhi. We all stay in it and breathe the air. Of course, that's a different story. As I said, we shouldn't. But the Yamuna front is very critical. It's one of the best. मैं इतना और कहना चाहूँगा, यमुना फ्रंट जो आपने वाटर फ्रंट की बात करी है, दैट वी हैव ऑलरेडी कंसीव्ड, और होपफुली नेक्स्ट मंथ हमारे टेंडर्स वगैरह हो जाएंगे. एक पार्ट जो है यमुना में वाटर फ्रंट बनाने का DDA बहुत जल्दी शुरू करेगा. It will be world class. Let's give him a very warm round of applause for that. The Lieutenant Governor has also very kindly agreed to present some of the awards for today. As I had mentioned in the morning meeting, we've actually been doing this, sir, for the last 5 years. And the idea is to encourage competition between states, friendly competition between the states. And we have surveyed something like 121 destinations, and all the states have participated. Then we engaged a very prominent research agency called MDRA to talk to various respondents, including frequent travelers. And they, in 9 categories, they've come up with winners for it. We have divided the winners into 2 things. One is the best performing states, and the other is the best emerging states. Because we feel sometimes one state keeps winning. So let's give a chance to those states that are trying to come up. Absolutely. So these particular awards that you're giving away, sir, is going to be for the best emerging states. So we'd be very honored. And Sonal, can you start the process for giving the awards? We'll just have these chairs cleared, sir, that we can just need to stand up for a minute. Yeah. And meanwhile, thanks a lot, sir, for taking your time out to be with us here today and sharing the initiatives to make Delhi a world-class tourism destination. And now it's time to recognize and honor the states for India Today's Best Emerging State Tourism Awards. The first award for the Best Emerging State for Tourism Award under the Heritage Destination category goes to Gwalior, Madhya Pradesh. May I request Vivek Shrotriyo, Additional Managing Director, MP State Tourism Development Board, to come up on stage and receive the award. Okay, so he's on his way, so we'll just move to the next award. The Best Emerging State for Tourism Award under the Mountain Destinations category goes to McLeodganj, Himachal Pradesh. And I would like to request Mansi Sahai Thakur, Director and Commissioner, Himachal Pradesh Tourism, to come to the dais and receive the award. Can I have a big round of applause, everyone, for the winners? The Best
Emerging State for Tourism Awards under the Wildlife Destination category goes to Blackbuck National Forest, Gujarat. And I would like to invite Harit Shukla, Principal Secretary, Tourism, Gujarat, to come up on stage and receive the award. Okay, he's also struck. I guess the traffic situation today is really bad. We'll move on to the next award. The Best Emerging State for Tourism Awards under the Festival Destination category goes to Sonpur Fair at Sonpur in Saran district of Bihar. May I request Mr. Nand Kishore, Managing Director, Bihar State Tourism Development Corporation, to come up and receive the award. The Best Emerging State for Tourism Awards under the Most Scenic Roads Destination category goes to Udaipur to Mount Abu in the state of Rajasthan. May I request Gayatri Rathore, IAS, Principal Secretary, Tourism, Government of Rajasthan, to come up and receive the award. Thank you, sir. The other two award winners are still on the way. So in the interest of time, I would like all the winners to come back on stage for a group photograph with Mr. Saxena. All the winners, please. Now I would like to request our editorial director, Mr. Raj Changappa, to hand over the token of appreciation to Mr. Saxena. Thanks a lot, sir, for taking time out of your schedule to